سابق گورنر پنجاب چودھری سرور نے متحدہ عرب امارات کے بعد برطانیہ میں بھی گرینڈ اوورسیز کلب بنانے کا اعلان کر دیا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہوں گے۔ کلب اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کرے گا۔ مزید وسیم قاسمی کی رپورٹ میں۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق گورنر پنجاب نے کہا کہ گرینڈ اوورسیز کلب یاسین ملک کی رہائی کے لیے عالمی اداروں سے رابطے کرے گا۔ اس کلب میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہوں گے۔ سابق گورنر کا مزید کہنا تھا کہ کلب اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا اور اس سلسلے میں تمام تر توانائیاں بروئے کار لائی جائیں گی۔ یہ کلب غیر سیاسی ہوگا اور اس میں اوورسیز پاکستانیوں میں سے لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔ سب سے بڑی تو خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور تمام پاکستان کی مذہبی جماعتیں یاسین ملک کی رہائی کے لیے اور دوسرے جو لوگ جو گرفتار ہیں ان کی رہائی کے لیے کشمیر کی کاز کے لیے متفق ہیں، اور میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ تمام پولیٹیکل ریپریزنٹیو وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے مجھے آل پارٹی ٹاسک فورس کا چیئرمین جو ہے وہ بنایا ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن انشاءاللہ ہم یاسین ملک کے عملی طور پہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپیل جو ہے اس کو نہ کیا جائے۔ اس کے لیے وکلاء کے ساتھ پاکستان میں یہاں پر مقبوضہ کشمیر کے وکلاء جو ہیں ان سے مشاورت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپیل جو ہے دائر کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پر ہم کو ان کو باعزت بری کروائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزاد خارجہ پالیسی کے لیے ملک کی معاشی حالت بہتر کرنا ہوگی۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب آزاد خارجہ پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں، جب تک ہم معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو اس وقت تک آزاد خارجہ پالیسی کا آپ تصور بھی نہیں جو ہے وہ کر سکتے۔ سابق گورنر نے کہا کہ بھارت کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب بھارت میں رہنے والی اقلیتیں چاہے وہ مسیحی ہوں، سکھ ہوں یا پھر مسلمان، نریندر مودی ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ریاست ان کو سزا دینے کی بجائے ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ انڈیا جو ہے وہاں پر کشمیری مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، منارٹیز کے خلاف، چاہے وہ کرسچن ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، نریندر مودی نے وہاں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے۔ یہاں تک کہ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں ان کی شان میں بھی جب گستاخی ہوتی ہے تو سٹیٹ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے بجائے ان کے کہ ان کو سزا دی جائے، جو بلینز مسلمانوں کی جو احساسات ہیں جو ان کو مجروح کرتے ہیں۔ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال بارے گفتگو کرتے ہوئے سابق گورنر کا کہنا تھا کہ ملک میں بنیادی خرابی کی بڑی وجہ مقامی حکومتوں کو مضبوط نہ کرنا ہے۔ جب جمہوریت آتی ہے تو سب سے پہلے مقامی حکومتوں کا گلا کاٹتی ہے۔ ایک صوبے میں یہ 297 ایم پی ایز کو ساری طاقت دینے کو تیار ہیں، لیکن 1 لاکھ سے زائد نمائندوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وسیم قاسمی، 92 نیوز، لندن۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ابھی اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا۔ لندن میں بیورو چیف UK غلام حسین اعوان سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب موجود ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی میں سب لوگ کام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت فلاحی کام کا آغاز کیا ہے۔ اوورسیز گرینڈ اوورسیز کلب جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے، جس کی باقاعدہ انیگوریشن جو ہے وہ 14 اگست کو ہوگی۔ پہلے تو سرور صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کلب کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں پاکستان میں $30 بلین سالانہ بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو سہارا ملتا ہے، اور میں اس بات پہ پیشنیٹلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم ان کو سیف اور سیکیور انوائرمنٹ دے دیں اور قبضہ مافیا سے ان کی جان چھڑا دیں تو یہ جو ریمیٹنسز ہیں یہ ڈبل ہو سکتی ہیں، اور پاکستان کو IMF اور دوسرے اداروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کو معاشی طور پر کوئی اس میس سے نکال سکتا ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی نکال سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ایفرٹ ہے، کوشش ہے کہ پہلے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ان کے مسئلے حل کرتا تھا، اور اب میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر بھی میرے پاس آتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں اس کا سیکریٹریٹ ہوگا، پوری دنیا میں اس کی تنظیمیں ہوں گی۔ آپ کے پاس پاور ہوگی نہیں تو کیسے حل ہوں گے لوگ؟ دیکھیں، ایک بات تو میرے خیال میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاور جو ہے وہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو $30 بلین دیتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا ان کی پاور کم ہے؟
उनको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की जरूरत है। तो जब ये ओवरसीज पाकिस्तानी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे, उनका फोकल एक पॉइंट होगा, वहां पर उनकी बाकायदा मेंबरशिप होगी, वहां पर स्टाफ जो है एक्सपीरियंस और पेड स्टाफ वहां पर बैठा होगा, 24 घंटे उनको सर्विस मिलेगी। तो इंशाल्लाह उनके मसले देखें। जब मैं पावर में होता हूं तो फिर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसले हल करता हूं, जब पावर में नहीं होता उससे ज्यादा हल करता हूं। ठीक है। देखिए, पीटीआई ने भी दावे तो बहुत किए कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हल करेंगे, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन यही मेरा सवाल फिर वही है कि लोग ज़ाहिर है आपसे बहुत प्यार करते हैं ओवरसीज वाले, लेकिन किस इख्तियार के तहत आप उनकी हेल्प करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मैं आप पहली बात तो ये है कि उनके जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा इशू ये है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। उनके पास जब अदालत में केस होता है तो उसकी फर्ज चाहिए होती है, उसके मुताबिक कब उसने खरीदा था, कब उसने पैसे कहाँ से लाया था। तो ये सारी चीज़ें उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत जो है होती है। हमारी जुडिशरी जो है माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जो हैं उनको हल करने में दिलचस्पी ले रही है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट, उनका प्रॉब्लम सीनियर लेवल पे नहीं है, उनका प्रॉब्लम लोअर लेवल पे उनको मसाइल होते हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पर हमारा पूरा स्टाफ होगा, मैं भी वहाँ खुद बैठा हूँगा, और जिस तरीके से पहले लोगों के मसाइल हल होते उससे बेहतर अंदाज से हम हल करें। अच्छा साहब, आप बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इस वक्त आपकी स्टैंडिंग जो है वो पीटीआई के अंदर है या नहीं है। देखिए, स्टैंडिंग तो मेरे तमाम जिन लोगों के साथ मैंने 7 साल काम किया है, वहाँ मेरे बहुत से दोस्त हैं, भाई हैं, वर्कर्स जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जब मैं गवर्नर था तो हज़ारों की तादाद में सिर्फ पहला जो रमज़ान शरीफ था उसमें 50,000 लोगों की इफ्तारी जो है वो गवर्नर हाउस में हुई थी। तो राब्ते तो हर पाकिस्तानी से नहीं, हैं स्टिल मेरे, पार्ट चाहे ऑफ वो पीटीआई। जो है पाकिस्तान में हो या बाहर। नहीं, पीटीआई का हिस्सा है आप अभी भी? देखिए, मैं अर्ज करूं, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि जो मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर है उसका फैसला अभी मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूं। इस वक्त मेरा जितना भी फोकस है फॉरेन विजिट का, वो यासीन मलिक की रिहाई की कंपेन करना है, इंटरनेशनल फोरम पे उनको उजागर करना है, और ओवरसीज क्लब जो है उसकी तंजीमें जो हैं पूरी दुनिया में बनाने पे मेरा फोकस है, जो कि दोनों काम जो हैं गैर सियासी। जूलिया एंड राना सोलिसिटर की 6ठी सालगिरह के मौके पर तकरीब का एहतमाम ईस्ट लंदन के मकामी हॉल में किया गया, जिसमें जूलिया एंड राना सोलिसिटर्स के डायरेक्टर्स, ईदी फाउंडेशन के फैसल ईदी के साथ साथ वकला, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मशहूर गुलकार सुहेल सलामत ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में मौसीकी के सुर बिखेरे। ईस्ट लंदन से सलीम साबरी रिपोर्ट करेंगे। जूलिया एंड राना सोलिसिटर के प्रिंसिपल इनाम राना ने कहा कि हमने इस फर्म की बुनियाद 2016 में रखी। हमारी ये फर्म 9 शोबों में लोगों को कानूनी मदद फराहम कर रही है। हाल ही में हमने ईदी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया है। उन्होंने मजीद बताया कि वो लोग जो लीगल एड की सहूलत नहीं रखते और जिनके पास वसाइल भी नहीं है, हमारी ये फर्म ईदी फाउंडेशन के तावन से उनको लीगल एड फराहम करती है। हमारे पास सोलिसिटर्स और डायरेक्टर्स मौजूद हैं जो लोगों को मुख्तलिफ कानूनी मसाइल में रहनुमाई फराहम करते हैं। पिछले 6 साल से ईस्ट लंदन और सेंट्रल लंदन में कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम अप्रॉक्सीमेटली 9 फील्ड्स में जो है वो सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा हमने सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं। रिसेंटली हमने एदी फाउंडेशन के साथ एक कोलैबोरेशन में एक लीगल एड प्रोजेक्ट शुरू किया है उन इमिग्रेंट्स के लिए जो लीगल एड पे क्वालिफाई नहीं करते और फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी के फरजंद फैसल ईदी ने कहा, जूलिया एंड राना सोलिसिटर के साथ मिलकर हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके जरिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा दीगर कम्युनिटीज की भी खिदमत कर रहे हैं। जूलिया एंड राना जो है वो हमारे पार्टनर्स भी हैं पाकिस्तान यूके के अंदर, जो हम लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में। तो इनकी जो है वो इस 6 सालगिरह के अंदर हम शरीक हुए हैं, यहाँ पे लंदन मौजूद था, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी, बल्कि पाकिस्तान कम्युनिटी के अलावा दुनिया की कम्युनिटी में मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दी है।
जूलिया एंड राना सोलिसिटर की सीनियर सिटीजन मलिहा खान ने कहा, आज हमारी इस फर्म को 6 साल पूरे हो गए हैं। हमारी ये फर्म सीनियर और तजर्बाकार वकला पर मुश्तमिल है। हमें बहुत खुशी है कि फर्म के 6 इयर्स कंप्लीट हो गए एंड मैं ये कह सकती हूँ कि फर्म जो हमारी है एक बहुत अच्छी फर्म है। उसकी हमारी टीम एक्सीलेंट टीम है एंड हम लोग अबव एंड बियॉन्ड जाते हैं क्लाइंट्स के लिए। अकरम कायम खानी ने कहा कि जूलिया एंड राना सोलिसिटर लोगों को इमिग्रेशन, प्रॉपर्टी, घरेलू मसाइल और दीगर मसाइल में कानूनी मदद फराहम करते हैं। आज की जो म्यूजिकल नाइट है, बुनियादी तौर पर जूलिया राना के 6 साल मुकम्मिल हुए हैं। वो 6 साल से जो खदमात अंजाम दे रहे हैं, सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं लोगों के लिए, उसके लिए मुकर्रर, ताकि लोगों को पता चले उनकी खदमात क्या हैं। और उसके साथ साथ कुछ नए प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हैं लोगों के, ख़ास तौर पे लीगल एड के हवाले से उसको उजागर करना चाहते हैं हम। We are celebrating the 6 years of success of the firm and we've been doing great and like I would like to thank Mr. Rana for all the opportunities and all the work he's been doing for, you know, the learning we have and the work he's done for others. So it's been a great journey. पाकिस्तानी कम्युनिटी के मायाज लोग, कारोबारी, सियासी, समाजी और वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये बड़ा अच्छा इवेंट है। Today we welcome you all on this annual function and please enjoy the night. फर्म के दीगर डायरेक्टर्स का कहना था कि हमें खुशी है कि हम लोगों की रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं और गुज़श्ता 6 साल में जिस तरह लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया है और हमें फीडबैक दिया है, ये हमारे लिए खुशी और इत्मीनान का बायस है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। तहरीक मिनहाजुल कुरान डंडी के ज़ेर एहतमाम सानिया मॉडल टाउन के शहदा और मजलूमीन के लिए जामे मस्जिद बिलाल में एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया और इंसाफ के लिए एहतजाज फिर रिकॉर्ड करवाया गया। तकरीब में मस्जिद बिलाल की इंतज़ामिया और मिनहाजुल कुरान डंडी के अहदेदारान ने शिरकत की। कैसर हबीब की रिपोर्ट। इनकिलाब 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 इनकिलाब। 17 जून 2014 सानिया मॉडल टाउन के शोहदा और मजलूमीन के हक में तहरीक मिनहाजुल कुरान डंडी के ज़ेर तमाम जामे मस्जिद बिलाल डंडी में एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया और हुसूल इंसाफ के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें मस्जिद बिलाल इंतजामिया और मिनहाजुल कुरान डंडी स्कॉटलैंड के अहदेदारान ने शिरकत की। हाज़रीन ने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए आला दलिया से फौरी इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया और इसमें मुलव्विस मुल्ज़मान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की इल्तिजा की। आज इस मौजू पे बड़ा अजीम एहतजाज हुआ है, क्योंकि ये केस अब अदालतों में है, इसलिए एहतजाज किससे किया जाए? हुकूमत वक्त से किया जाए, हालांकि वो मुजरम है, उनको की तरफ भी इशारा है, लेकिन इंशाल्लाह इसका लाएअमल जल्द तैयार किया जाएगा। ये ज़्यादा देर नहीं होगी, जल्द इसका इंसाफ मिलेगा और इनकलाब आएगा। हमारी गुजारिश है कि अदालतें अपना किरदार अदा करें। ये अदालतें दिन में भी लगती हैं, ये अदालतें रातों में भी लगती हैं, छुट्टी के दिन भी लगती हैं और हम भी ये चाहते हैं कि इंसाफ बर वक्त दिया जाए, जब उसकी ज़रूरत हो उसी वक्त मिलना चाहिए। लिहाजा ये जो शोहदाए मॉडल टाउन हैं, 8 साल गुजरने के बाद इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। 8 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये केस दूर ही दूर जाता नज़र आता है, जिसमें हम देखते हैं कि अवामी तहरीक के लोग, मिनहाजुल कुरान के लोग और पाकिस्तान के मजलूम लोग वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वो हाई कोर्ट में भी गए, वो डिफरेंट कमीशंस में भी गए, कमीशन टूटते गए, दोबारा बनते गए और आज तक दाद रसी ना हो सकी। 8 साल का अरसा गुजरने के बावजूद आज हम इस मौका पर एक बार फिर हुक्मरान वक्त से ये गुजारिश करते हैं कि खुदा की लाठी आवाज़ है, लिहाजा आप देर तो कर सकते हैं, लेकिन उन कातिलों को, उन जुल्म करने वालों को अल्लाह की अदालत से कोई नहीं बचा सकता। इस मौके पर सानिया मॉडल टाउन के शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई और बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ की गई। नाज़रीन, लंदन में मुकीम चौधरी एहसन घराल मुस्लिम लीग काफ बरतानिया की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। चौधरी एहसन घराल समेत मुस्लिम लीग काफ बरतानिया की पूरी टीम ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी एहसन घराल का कहना था कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता जो एक करप्ट टोले को सपोर्ट करे। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है जो ऐसे हुक्मरान मुस्तलद कर दिए गए हैं जिनको आवाम की और ना ही मुल्क पाकिस्तान की फिक्र है। एहसन घराल का कहना था कि मैं बाप दादा से मुस्लिम लीगी हूँ, लेकिन मैं इस वक्त मुस्लिम लीग काफ से अलहदगी इख्तियार करता हूँ। मुस्तकबिल का फैसला चौधरी परवेज इलाही, चौधरी वजाहत हुसैन साहब की क़यादत में करेंगे। मुस्लिम लीग काफ लंदन के सदर नईम अब्बास और विमेन विंग
तानिया की सदर आबिदा बतूल शाह भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई। उनका कहना है कि हम मुस्तकबिल का फैसला अहसन घराल की क़यादत में करेंगे, हम उनके शाना बशाना मिलकर काम करेंगे। नाज़रीन, मक्का मुकरमा में पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में अयाम हज में हुज्जाज कराम को बरवक्त तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए मकतब समेत ट्रांसपोर्ट के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। उमैर अली की रिपोर्ट। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में अयाम हज में हजाज कराम को बर वक्त तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए मकतब समेत ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया। मक्का मुकरमा में होने वाले इजलास में डायरेक्टर हज इब्रार मिर्जा ने पाकिस्तान हज मिशन के हुकाम समेत हजाज कराम के मकतब और ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदारान के हमरा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि अयाम हज में मनी, मस्जिद लफा और अरफात पे हजाज कराम को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि पाकिस्तानी हजाज को मुश्किलात का सामना न करना पड़े, जिसके लिए पाकिस्तान हज मिशन और मकतब के सऊदी हुकाम की एक कमेटी तश्कील दी जा रही है ताकि हजाज कराम की शिकायत को फौरी हल किया जाए। इस मौके पर डायरेक्टर मक्का मुकरमा साजिद असदी का कहना था कि इस साल नई हिकमत अमली तरतीब दी गई है ताकि अयाम हज के दौरान मुशारे मुक़द्दसा में पाकिस्तानी हजाज कराम मुश्किलात का सामना किए बगैर बेहतर अंदाज में फरीज़ा हज अदा कर सकें। इजलास में हज मिशन की जानिब से इमरान शाह, डॉक्टर अख्तर अब्बास शरीक थे। उमैर अली, नुमाइंदा 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें ख़वातीन के सियासी किरदार को सराहते हुए मुस्लिम लीग नून विमेन विंग का ऐलान किया गया। उमैर अली की रिपोर्ट में देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुनक़दा तकरीब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख़वातीन के सियासी किरदार को सराहते हुए मुस्लिम लीग नून विमेन विंग का ऐलान किया गया। तकरीब में लीगी ओहदेदारों और वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून विमेन विंग का ऐलान किया गया, जिसमें मारिया सिद्दीकी को विमेन विंग का सदर नामजद किया गया। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कि मुल्क की सियासत में ख़वातीन का अहम किरदार रहा है, जिन्होंने मुल्क की सियासत में हिस्सा लेकर अपना नुमाया किरदार अदा किया और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ख़वातीन को सियासत में अहम किरदार अदा करने का मौका फराहम किया है और लीगी ख़वातीन मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग का हरावल दस्ता हैं और अब सऊदी अरब में भी मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन सियासी जिद्दोजहद में फ़ाल किरदार अदा करेंगी। जो कायदे आज़म वाली मुस्लिम लीग थी, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने उसको उसी तरह बनाने की पूरी कोशिश की और उनके भाई जो हैं उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। आगे ये है कि मियाँ साहब के भी अप्स एंड डाउन्स आए उनकी सियासत में, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर ये सब मिल के काम करें और लोगों की सपोर्ट हो तो ज़रूर वो पाकिस्तान के असल निजात दहिंदा बन जाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत ज़रूरत भी थी यहाँ पे ख़वातीन के लिए काम करने की, जो कि इंशाल्लाह किया भी जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर खालिद अकरम का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत मुल्क को इंतकामी सियासत समेत महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन जैसे शदीद मसाइल से दो चार कर गई और मुल्क की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर मुल्क को गिरवी रख दिया गया। मगर हम पुरज़म हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगी। आज हमने उसका बाकायदा जो इफ्ताह किया है वो हमारी बहन समीना इकबाल के हाथों से किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारा लेडीज़ चैप्टर है वो मुस्लिम लीग के हवाले के साथ साथ लेडीज़ के जो यहाँ मिसाइल हैं वेलफेयर के हवाले से उनमें अपनी बेहतर खिदमत अंजाम दें। तकरीब से समीना कासिम, सरदार शोएब, जाहिद सिंधु, तारिक शहजाद, राना खादिम, काजी शहजाद ने भी खिताब किया और तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में पाकिस्तानी इदारों के साथ इजहार यकजहती के सिलसिले में हफ्ता इस्तेहकाम पाकिस्तान बनाया गया, जिसमें वियना के मुख्तलिफ पाकिस्तानी मसाजिद में नमाज जुमा के दौरान पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा गया। अकरम बाजवा रिपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में पाकिस्तानी इदारों के साथ इजहार यकजहती के सिलसिले में हफ्ता इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया गया। तकरीब में वियना की मुख्तलिफ पाकिस्तानी मसाजिद में नमाज जुमा के दौरान पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जुमा के बाद इदारतुल मुस्तफ़ा सेंटर वियना के खतीब प्रोफेसर अजहर अब्बास सियालवी, मस्जिद अल बिलाल वियना के सरपरस्त अलहाज मोहम्मद अकरम भट्ट, मिनहाजुल कुरान ऑस्ट्रिया के सरपरस्त आला अलहाज ख्वाजा मोहम्मद नसीम और मस्जिद अल बिलाल के खतीब हाजी अलामा मोहम्मद नासिर और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी सियासत को पाकिस्तान में ही रहने दें। पाकिस्तानी इदारों पर बेवजह तनकीद की बजाय इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत को सराहा जाए। हमें चाहिए कि बैरून मुल्क बाहमी नाचाकियों की बजाय मसला कश्मीर और पाकिस्तान के बेहतर इमेज के लिए काम करें और इदारों को मुतनाज़िब बनाने से गुरेज करना चाहिए। आज पूरे वियना में, ऑस्ट्रिया में बल्कि यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जा रहा है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह ता क़यामत पाकिस्तान कायम रहेगा। हम पाकिस्तानी इस्लाम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी हम वक्त अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं।
اور اس ضمن میں خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج یوم استحکام پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم ناموس رسالت پر بھی بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، بد تہذیبی کی گئی، اس کے حوالے سے ہم لوگ مکمل سراپا احتجاج ہیں اور مذمت کرتے ہیں اس کی، اور انڈیا کو بتانا چاہتے ہیں، بلکہ پورے عالم کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ہمہ وقت اپنے آپ کو اور آپ کی ناموس پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ آگے پیچھے اوپر نیچے سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جتنے دشمن کا قوتیں یا اللہ سرگرم ہے سب کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے جتنے ادارے کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے یا اللہ ان کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ خاص طور پہ ہماری یا اللہ پاکستان آرمی اور یا اللہ اس سے جڑے ہوئے جتنے یا اللہ ہمارے ادارے ہیں ان کو مستحکم فرما، ان کی حفاظت فرما۔ آخر میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور پاک فوج کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی اور بھارت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور مسلمانوں پر بھارتی مظالم کی بھرپور مذمت کی گئی۔ اکرم باجوہ، 92 نیوز، ویانا، آسٹریا۔ ناظرین، خوش ذائقہ رسیلے پاکستانی آموں کی نیدرلینڈز میں بھی دھوم ہے۔ اپنے منفرد ذائقے اور خوشبو کی وجہ سے پاکستانی آم اوورسیز پاکستانیوں میں تو مقبول تھے ہی، اب یورپین اور دیگر ایشیائی تارکین وطن میں بھی تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ آموں کا سیزن شروع ہوتے ہی دکانوں پر پاکستانی آم خریدنے والوں کا رش لگ جاتا ہے۔ مزید احوال بتائیں گے ڈاکٹر محمد کامران اپنی رپورٹ میں۔ پاکستانی آم نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں بھی نہ صرف مقبول ہیں بلکہ پورے نیدرلینڈ میں ان کے ذائقے اور رسیلے پن کی دھوم اور چرچے ہیں۔ پاکستانی آم کے امپورٹر راشد زیدی کی کاوشوں سے اب پاکستانی آم نیدرلینڈ میں ایشیائی پروڈکٹس کی سب سے بڑی سپر مارکیٹ امیزنگ اورینٹیل پر بھی دستیاب ہیں۔ آموں کے سیزن کے آغاز پر دی ہیگ میں راشد زیدی کی جانب سے پاکستانی مینگو ٹیسٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جسے نیدرلینڈز میں بسنے والے مختلف رنگ و نسل کے افراد نے بے حد سراہا۔ اس موقع پر راشد زیدی کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ پاکستانی آم یورپی صارفین تک پہنچا رہے ہیں اور پاکستانی آم کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹ ہے پچھلے سالوں سے ڈبل ہو گئی ہے، اور سب سے زیادہ مینگو کے ساتھ ہم نے جو کیا ہے وہ آج کا اس سٹور میں جامنو کو پروموٹ کرنے کا کیا کام، اور لوگ پسند کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان سے جامنو بھی اب آئے گا یہاں پہ ہالینڈ میں، اور جو ہماری کوالٹی ہے مینگو کی پاکستان کی وہ تو بہت ہی زیادہ اچھی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم اس سے بھی بہتر کریں گے۔ اور مارکیٹ میں اب سب لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستانی مینگو کب آئے گا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان سٹوروں پہ پاکستانی مینگو سپلائی کر رہے ہیں جو ہالینڈ کے سب سے بڑے سٹور ہیں۔ امیزنگ اورینٹیل سپر مارکیٹ کے کمرشل ڈائریکٹر مارٹن جن کا کہنا تھا کہ پاکستانی آم کی کوالٹی اور ذائقہ باقی دنیا کے آموں کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے سٹورز پر پاکستانی آموں کی فروخت بڑھ گئی ہے۔ Of course today we have introduced the Pakistan mango. Pakistan mango is very high quality mango, and this is tasty, sweet, creamy and very spicy, and we are already selling the Pakistan mango I think more than 15 years already, more than 15 years. In the beginning a small quantity, now at the moment is a very big quantity, especially in this season. دی ہیگ میں قائم پاکستانی سفارت خانے کے کمرشل اتاشی رضوان الحق کا کہنا تھا کہ یہ بات انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ پاکستانی آموں کی نیدرلینڈز میں ایکسپورٹ گزشتہ چند سالوں سے تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور آموں سے تیار کی گئی دیگر پروڈکٹس بھی ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان دنیا بھر میں آم پیدا کرنے والا چھٹا بڑا ملک ہے۔ نیدرلینڈ پاکستان کے لیے بہت اہم مارکیٹ ہے۔ الحمدللہ 3 سال سے ہر سال ہماری جو ایکسپورٹ ہے پاکستان مینگو کی وہ تقریباً ڈبل ہو رہی ہے۔ 2019-20 میں یہ $2,53,000 کے قریب تھی، اور 2020-21 میں یہ $6,00,000 پہ چلے گی، اور اس رواں مالی سال کے ابھی 11 مہینے گزرے ہیں اور ایکسپورٹ ہماری $12,00,000 پہ جا چکی ہے۔ اس میں مینگو کے علاوہ مینگو پروڈکٹس بھی شامل ہیں۔ جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ پاکستانی مینگو کے علاوہ جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہے جیسے پلپ ہے وہ بہت یہاں پہ آنا شروع ہو گیا۔ پاکستانی آموں کا سیزن 2 سے 3 ماہ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن پھلوں کے بادشاہ کہلانے والے اس پھل کو جدید طریقوں سے محفوظ کر کے کثیر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر محمد کامران، 92 نیوز، دی ہیگ، نیدرلینڈز۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ ریل کمپنی ویب ٹیک کی جانب سے پاکستان کے ریلوے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے
और इंजन्स की जरूरियात पूरी करने के हवाले से मुआविनत की पेशकश। सफीर पाकिस्तान ने कंपनी की जानिब से की गई पेशकश का खैर मकदम किया है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान से बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रेल कंपनी वेबटेक के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने सफीर पाकिस्तान को पाकिस्तान में अपनी कारोबारी सरगर्मी और तजुर्बात, पाकिस्तान रेलवेज के साथ मुख्तलिफ उमूर में ताउन और मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। रेल इंजन्स की तैयारी के हवाले से कंपनी के खुसूसी इस्तादादकार खुसूसन डिजिटलाइजेशन, कंट्रोल एंड सेफ्टी, सिग्नल ट्रैफिक और फ्यूल की बचत के हवाले से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाए जाने के हवाले से आगाह किया। वफ़द ने कहा कि अब तक कंपनी की जानिब से पाकिस्तान रेलवेज को 153 इंजन फराहम किए जा चुके। सफीर पाकिस्तान ने वेबटेक की जानिब से पाकिस्तान रेलवेज के साथ ताउन को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान रेलवे निज़ाम को जदीद बनाने के ज़िम्न में वेबटेक के तजुर्बात और सलाहियतों से इस्तेफादा करने का ख्वाह है। एम्बेसी अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत एलएस डील मिडल स्कूल के तलबा की सिफारत खाने पाकिस्तान वाशिंगटन आमद। तलबा की सफीर पाकिस्तान मसूद खान से मुलाकात हुई। वाशिंगटन परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोग्राम के तहत ये तलबा स्कूल के असातिज़ा की निगरानी में पाकिस्तान की तारीख, जोग्राफिया और सकाफत का गुज़िश्ता कई महीनों से मुतालिया कर रहे हैं। तलबा ने पाकिस्तान के खानों, सकाफत, जुबानों, मजहबी रिवायात, शहरों, त्योहारों, इलाकाई और नवादरात पर मबनी तफसीली प्रेजेंटेशंस दी। सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने तलबा का इस्तकबाल करते हुए उनकी मेहनत और कारकर्दगी को सराहा और कहा कि एम्बेसी अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत तलबा को पाकिस्तान के बारे में जानने का भरपूर मौका मिला है। सफीर पाकिस्तान ने तलबा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सफीर पाकिस्तान ने तलबा को कहा कि वो पाकिस्तान की सकाफत में अपनी दिलचस्पी को जिंदा रखें। तलबा की जानिब से पेश की गई प्रेजेंटेशंस में सफारत खाने के प्रेस सेक्शन ने उनकी रहनुमाई की। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सतह पर इनामात और एजाज़ात से भी नवाजा गया है, जिनमें DC पब्लिक स्कूल्स सोशल स्टडीज प्रोग्राम और US डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अवार्ड फॉर स्टैंडिंग इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम शामिल हैं। भारत में बीजेपी रहनुमाओं की तरफ से गुस्ताखाना बयान के खिलाफ साउथ अफ्रीका के दारुल हुकूमत प्रेटोरिया में इंडियन सफारत खाने के सामने एहतजाज किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के हज़ारों अफराद ने एक जुबान होकर भरपूर एहतजाज किया। शाहिद घुमन की रिपोर्ट। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू जमात बीजेपी के रहनुमाओं की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ पूरी दुनिया की तरह साउथ अफ्रीका में भी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज दारुल हुकूमत प्रिटोरिया में भारतीय हाई कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज किया गया। आपको आज शर्म आनी चाहिए है कि आपने अल्लाह ताला का, कुरान का और मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी अपनी गंदी जुबान पे कैसे लेके आई हो। एहतजाज करने वालों में साउथ अफ्रीकन सियासी और समाजी तंजीमों, जिनमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, डेमोक्रेटिक अलायंस, काउंसलर्स, पाकिस्तानी सियासी और समाजी तंजीमों, बांग्लादेशी, भारतीय और दीगर अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों ने भरपूर शिरकत की। हजारों मुजाहिरीन ने कतबे उठा रखे थे, जिस पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मोहब्बत और अमन के पैगामात नुमायां थे। इस मौके पर मुजाहिरीन का जज्बा काबिल दीद था। एहतजाज के दौरान गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं समेत फिजा दीगर फलकशिगाफ नारों से गूंजती रही। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। मुख्तलिफ मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं की तरफ से खिताबात में अक़वाम मुत्तहिदा और भारतीय हुकूमत को बावर कराया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जब तक तौहीन रिसालत करने वालों को कानून के मुताबिक सजा नहीं दी जाती, एहतजाज जारी रहेगा। The representatives of the Muslims of South Africa, today's date, the 17th of June 2022, the purpose, blasphemous comments made against the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by BJP spokesperson Nupur Sharma, and genocide of Muslims in India by extremist groups. जो भी दोस्त दूर रहा है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ये जो हमारी हाज़री है ये कबूल करे और क़यामत के दिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत जो है वो नसीब करे। कम्युनिटी रहनुमाओं की तरफ से भारतीय हाई कमीशन को यादाश्त पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन सफारत खाने के अमले ने यादाश्त वसूल करने से इनकार कर दिया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़े गए और आलम इस्लाम के लिए ख़ुसूसी दुआ कराई गई। नाज़रीन, इस्लामाबाद में महबूद एग्जीबिशन की जानिब से सकाफती तकरीब का इनाकात किया गया। निजी होटल में सजी तकरीब में पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफतों को खूबसूरत मलबूसात में पेश किया गया। तकरीब का मकसद घर में बैठे ख़वातीन की मेहनत को दुनिया के सामने पेश करना है।
اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں بہبود کی جانب سے ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ترکی سفیر کی اہلیہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئی اور گھر بیٹھی خواتین کے ہاتھ سے بنے خوبصورت ملبوسات کا مشاہدہ کیا اور ان کے کام کو سراہا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد گھر بیٹھی خواتین کے کام کو سراہنا اور ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ ہم ہر علاقے کے اسٹیجز کو پروموٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ہوم بیسڈ ورکرز کام کرتے ہیں وہ، اور یہاں پہ ایگزیبیشن کا مقصد بھی ان کے لیے ہی کام کرنا ہے۔ یہ ایگزیبیشن جو کہ ٹرکش ایمبیسڈر کی وائف نے آ کے کیا تاکہ ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی ساتھ آئے اور وہ بھی دیکھے کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ تقریب میں شرکاء نے بھی مختلف ثقافتی ملبوسات میں دلچسپی ظاہر کی۔ پوری دنیا میں جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کوئی کپڑا کوئی مٹیریل ضائع نہیں کرتے، سو اٹ از آلسو ایکو فرینڈلی اور یہ فاسٹ فیشن نہیں ہے، سو اٹس اے ریئلی گڈ انیشیٹو۔ یہاں کرتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں نا وہ سب ایک سے بڑھ کے ایک چیز ہے، اور نئی چیزیں بھی بہت خوبصورت ہیں، تارکشی بھی بہت پیاری ہے، ہر طریقے سے ہر کڑھائی بہت اچھی ہے، اور ہر انسان جو بھی دیکھے گا نا اس کا دل چاہے گا میں خرید لوں۔ تارکشی کا کام دیکھتے ہم اتنا باریک ہے تو اچھا لگتا ہے، تو ہم مانتے کہ یہ گھر میں جو بیٹھ کے عورتیں کام کرتی ہیں تو ان کی محنت ہے، جو بہبود کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں، بہبود ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسی نمائش سے خواتین کے لیے گھر بیٹھے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین امجد عباسی کے ساتھ بلال آفریدی، 92 نیوز، اسلام آباد۔